Hello children, once again I welcome all of you to my YouTube channel. Today we'll be doing chapter number 4 of the book Beehive, class 9 CBSE, that is A Truly Beautiful Mind, a beautiful chapter, a chapter related to the greatest scientist ever, Albert Einstein, a name that doesn't require any introduction. So let's discuss this chapter. Who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. So, my dear children, we often use this word genius. Have you ever thought of what does it mean? Genius means a man who is having some sort of extraordinary skills, and such a person is called as a genius. A person who has this creative thinking, who thinks beyond the capability or ability of other common people. So that is what genius is all about. So in this chapter we will read about a young German civil servant. Civil servant means a government employee who brought a revolution in the world some 100 years ago. Okay, what type of revolution it was? Let's find out. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. So it was the year 1905, and a 26-year-old guy, he wrote 4 articles back to back. Quick succession means ek ke baad ek. He wrote 4 articles for a scientific journal. Okay, scientific journal means a scientific magazine. So his articles were published in a scientific magazine, and those articles were about light. It was about motion of particles, it was about electrodynamics of moving bodies, and energy. So finally, when it was published in that scientific magazine, what happened? That article, or those articles, literally changed the understanding of space, time, and the entire cosmos. And literally what happened, this name Einstein, it became a synonym for genius. और जब एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो आर्टिकल्स लिखी गई थी, जब वो साइंटिफिक मैगजीन में जब वो पब्लिश हुई, तो लोगों की जो एक धारणा, एक सोच हुआ करती थी स्पेस को लेकर, टाइम को लेकर, और एंटायर कॉस्मोस, कॉस्मोस मीन्स यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स को लेकर जो एक सोच थी इंसानों की, वो एकदम हमेशा के लिए बदल गई. और तभी से ये जो आइंस्टीन नाम है, ये जीनियस वर्ड का क्या बन गया? सिनोनिम, है ना. सिनोनिम इन हिंदी हम पर्यायवाची कहते हैं ना, तो जीनियस शब्द का पर्यायवाची क्या बन गया? आइंस्टीन. 50 years after his death, एल्बर्ट आइंस्टीन्स जीनियस स्टिल रेन्स. और लगभग 50 साल हो चुके हैं आइंस्टीन के डेथ के, लेकिन अभी भी जो आइंस्टीन ने जो बातें कही, जो थ्योरी उन्होंने दी है, जो उन्होंने अपने इंटेलिजेंस का जो परिचय दिया है, वो अभी भी क्या कर रहा है? रेन, REIGNS, रेन मतलब अभी भी राज्य कर रहा है, अभी भी दुनिया में उसका जो है बोलबाला है. इट इज स्टिल डोमिनेंट इन दिस वर्ल्ड. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. So Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, and very obvious, जब उनका जन्म हुआ तो बिल्कुल भी कहीं से भी इस बात का अंदेशा नहीं था. There was no indication that this boy
this little boy was going to become the greatest scientist और ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, किसी को भी ये इस बात की बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि बड़ा होकर ये इंसान दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और या एक महान शख्सियत बनेगा. ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके विपरीत, इवन ऑपोजिट, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. But according to her mother, Albert was a freak. And what do you mean by the word freak? A person with an unusual physical abnormality. ठीक है ना, abnormality means सनकी भी कह सकते हैं, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर जो है कुछ physical ailment हो. ठीक है, और what was the reason behind that? To her, his head seemed much too large. Actually, Albert Einstein का जो सर था वो बाकी बच्चों के मुताबिक काफ़ी बड़ा था. तो मदर को थोड़ा सा लगता था कि ये बच्चा जो है फिजिकली जो है एबनॉर्मल है, बल्कि थोड़ा सा सनकी प्रकार का है. ठीक है, दैट वाज व्हाट हिज मदर यूज्ड टू थिंक. एट द एज ऑफ 2.5, आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. So when even at the age of 2.5, Einstein was not talking. Normally what happens at the age of 2.5, normally children, they start talking. Maybe they won't talk in a fluent way, but still छोटी मोटी शब्दों का वो प्रयोग करना शुरू कर देते हैं 2-2.5 साल में. But in Einstein's case, it was not like that. Einstein was unable to talk, even at the age of 2.5 years. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. And finally, जब आइंस्टीन बोलना सीखे तो हर बात को दोहराते थे. Uttered means to speak, और हर बात को 2 बार बोलते थे वो. Einstein did not know what to do with other children and his playmates. और जब आइंस्टीन को बाकी बच्चों के साथ बैठा दिया जाता था खेलने के लिए, तो आइंस्टीन को समझ में नहीं आता था कि मुझे करना क्या है बाकी बच्चों के साथ, व्हाट टू डू. एंड दैट वाज द रीजन द अदर चिल्ड्रन और हिज प्लेमेट्स, दे यूज्ड टू कॉल हिम ब्रदर बोरिंग. तो वो सब कहते थे ये बड़ा बोरिंग बच्चा है, ये इसके साथ कौन खेलेगा, बहुत ही बोरिंग है ये, और इसको ब्रदर बोरिंग कह के बुलाया जाता था आइंस्टीन को. So the youngster played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" So now this young boy, no friends were there because all other children used to call him brother boring. So most of the time he used to play with himself. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अपने साथ ही खेला करते थे. और ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़. उनको मैकेनिकल टॉयज़ बहुत पसंद थे. ठीक है, जिसमें मशीन लगे हुए हों, जिसमें पहिए लगे हुए हों, पहिए घूमते हों, सम वॉट लाइक दिस. सो लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. और जब आइंस्टीन की जो बहन है माजा, उनका जब जन्म हुआ तो उनको देखकर आइंस्टीन ने कहा कि अरे इस बच्ची के व्हील्स कहाँ हैं, पहिए कहाँ हैं. ठीक है ना, तो क्योंकि उनके दिमाग में वो मैकेनिकल टॉयज़ का इस प्रकार से जो एक कह सकते हैं आप कि इतना ज़्यादा उसका असर था उनके दिमाग में, मैकेनिकल टॉयज़ को लेकर इतना उनका प्यार था कि वो माजा के जो है लेग्स बोलने की जगह वो कह रहे थे कि व्हील्स कहाँ हैं. इनफैक्ट लेग्स थे बच्ची के, ऐसा नहीं है, लेकिन वो व्हील्स कहाँ है, वो कह रहे थे पहिए कहाँ है इसमें. ठीक है, पहिए नहीं लगे हुए हैं. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. So once what happened, his headmaster told Einstein's father that whatever profession he would choose, it's not going to matter because he would never make a success at anything. हेडमास्टर का ये कहना था कि आइंस्टीन बड़े होकर कोई भी प्रोफेशन चूज कर ले, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, और आइंस्टीन began to learn the violin at the age of 6, and when he was of 6 years old he started learning how to play violin. And what was the reason behind that? Because his mother wanted him to. And he later became a gifted amateur violinist.
और चूँकि वो 6 साल की उम्र से वायलिन बजाना सीख रहे थे और वो कुछ सालों बाद एक काफ़ी एक्सपर्ट वो वायलिनिस्ट बन गए, बहुत अच्छी तरीके से वायलिन बजाते थे। हालांकि ही वॉज एन एमेच्योर वायलिनिस्ट। एमेच्योर मीन्स नॉट ए प्रोफेशनल वन, ठीक है, शौक के तौर पर वो वायलिन बजाते थे, ना कि उनका वो व्यवसाय था, ना कि उनका वो कोई प्रोफेशन था वायलिन बजाना। एंड थ्रू आउट हिज लाइफ ही मेंटेन दिस स्किल, और जब तक वो जिंदा रहे तब तक उनकी ये जो शौक थी वायलिन बजाने की वो बनी रही। But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. Now the question arises कि क्या एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत ही वीक स्टूडेंट थे, स्लो लर्नर थे, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे, कि हेडमास्टर ने ऐसा उनके बारे में कहा कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं था। बल्कि when Albert Einstein I mean he got good marks, you know, he scored almost good marks in all the subjects. हाई स्कूल में जब वो म्यूनिक इज़ ए सिटी, यू नो, इट्स अ प्लेस इन जर्मनी में एक जगह का नाम है म्यूनिक, और वहाँ पर जब अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे सो उस समय उन्होंने हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. But there was a problem with Einstein, you know. The rules and regulations of that school, the discipline of that school was somewhere, you know, creating, you know, some sort of contention in between Einstein and, you know, the teachers. उस स्कूल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो एक प्रकार से जो है आइंस्टीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। जो डिसिप्लिन है, जो रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और इसकी वजह से अक्सर उनकी जो है बहस होती थी टीचर्स के साथ, है ना। क्लैश्ड हियर मींस आर्ग्यूमेंट, ठीक है, हमेशा वो बहस किया करते थे टीचर्स के साथ। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. और फिर फाइनली व्हाट हैपन्स, जो एल्बर्ट आइंस्टीन के पेरेंट्स थे वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए, मिलान, और वहाँ वो चले गए। लेकिन उन्होंने जो है आइंस्टीन को जो है अपने रिश्तेदारों के साथ ही रख दिया कि तुम यहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करो। बट आइंस्टीन वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग हिज, यू नो, स्टडीज़ इन म्यूनिक। लेकिन आइंस्टीन बिल्कुल भी वहाँ रहकर पढ़ाई करना नहीं चाहते थे, क्योंकि स्कूल उनको पसंद नहीं था, वहाँ के टीचर्स के साथ उनका आर्ग्यूमेंट होता था। तो उन्होंने बहुत कोशिश की और सबको मनाने की कोशिश की, अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश की, और बेसिकली वो चाहते थे कि स्विट्ज़रलैंड जाकर वहाँ पर अपनी आगे की पढ़ाई करें। और स्विट्ज़रलैंड में एक जगह थी, एक शहर था जहाँ पे जर्मन भाषा बोली जाती थी, और वहाँ पे जर्मन भाषा में जो है एजुकेशन भी दिया जाता था। तो वो उनकी ख्वाहिश थी वहाँ जाने की। एंड अनदर रीज़न वाज व्हाट, कि वहाँ के जो स्कूल्स थे वहाँ पे फ्रीडम बहुत था, ठीक है, लिबरल मीन्स फ्रीडम। यहाँ पर जो आज़ादी नहीं थी स्टूडेंट्स को, वहाँ पर वो आज़ादी भी थी। सो दैट वाज द रीज़न कि वो वहाँ जाना चाहते थे, एंड फाइनली, यू नो, हिज विश वाज एक्सेप्टेड। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. और आइंस्टीन मैथमेटिक्स में बहुत तेज़ थे और फिज़िक्स में उनका बहुत इंटरेस्ट था, और अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वहाँ ज्यूरिक के यूनिवर्सिटी में ही आगे की पढ़ाई अपना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। ज्यूरिक क्या है? ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड का एक शहर का नाम है। But science was not the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. Now he was not at all interested in science only. Okay, he was also interested in other aspects also. ऐसा नहीं था कि उनकी रुचि जो सिर्फ साइंस में ही थी, साइंस के अलावा भी उनकी बाकी चीज़ों में भी रुचि थी। किस में थी वो हम आगे देखते हैं। और ये उस समय काफ़ी डैशिंग यंग मैन थे, काफ़ी हैंडसम लुकिंग यंग मैन थे, और उनकी मूछें कैसी थी? वॉलरस मुस्टैच, ठीक है ना। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक सी मैमल है ये, एक्वेटिक मैमल जो है, इसको वॉलरस कहा जाता है। इसकी जो मूछें होती हैं नीचे की ओर होती हैं, वैसे ही आइंस्टीन की मूछें भी जो है नीचे की ओर हुआ करती थी। तो ऐसी मूछें जो आइंस्टीन जिस तरीके से मूछें रखते हैं उसको कहा जाता है वॉलरस मुस्टैच। तो वैसी मुस्टैच वो रखा करते थे। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. So जब ये अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पर उसी
यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात एक और स्टूडेंट से हुई जिनका नाम मिलेवा मैरिक था, और मिलेवा मैरिक के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, और उनको लगता था कि मिलेवा मैरिक भी बहुत क्या है, क्लेवर क्रीचर है, कि वो भी एक काफ़ी इंटेलिजेंट लेडी है. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. अब ये जो मिलेवा मैरिक है ये कहाँ से आई थी? ये सर्ब से आई थी. सर्ब का मतलब यहाँ पे है सर्बिया, ठीक है. तो वहाँ से वो आई हुई थी स्विट्ज़रलैंड पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उस समय बहुत ही लिमिटेड, वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज़ वर देयर दैट वर लिटरली प्रोवाइडिंग डिग्रीज टू द विमेन, ठीक है. कुछ ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी उस समय जहाँ पर जो है विमेन को डिग्री मिला करती थी एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसलिए वो अपनी पढ़ाई पढ़ने यहाँ पर आई थी. और एक और रीज़न क्या था कि आइंस्टीन को जो है, आइंस्टीन अट्रैक्ट हो गए थे मिलेवा के प्रति, कि मिलेवा की जो मेंटालिटी है और आइंस्टीन की मेंटालिटी काफ़ी मिलती जुलती थी. आइंस्टीन सॉ इन हर एन एले, एले मीन्स व्हाट, फ्रेंड. आइंस्टीन को मिलेवा के अंदर अपना एक दोस्त दिखता था. और दूसरी बात क्या है, आइंस्टीन वाज अगेंस्ट फिलिस्टाइन, ठीक है. फिलिस्टाइन मतलब क्या होता है? फिलिस्टाइन मीन्स यू नो ऐसे लोग हैं जो लिटरेचर और म्यूज़िक को पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोग हैं जो एक कल्चर को पसंद नहीं करते ना. ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका ये मानना होता है कि पढ़ाई अच्छी चीज़ नहीं है, या फिर म्यूज़िक अच्छी चीज़ नहीं है, या लिटरेचर अच्छी चीज़ नहीं है. तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट रहते थे हमेशा आइंस्टीन. और आइंस्टीन की जो आइडियोलॉजी थी, जो उनकी थिंकिंग थी, वही थिंकिंग मिलेवा की भी थी. सो बोथ वर टू सम एक्सटेंट दे वर हैविंग दैट सेम माइंड सेट, एंड दैट वाज द मेन रीज़न. एंड व्हाट हैपेंड, द कपल फेल इन लव. और फिर क्या हो गया, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. And in those times, these telephones and WhatsApp and all these things were not there. So people used to exchange letters. तो उस समय क्या होता था कि letters लिखे जाते थे. तो कुछ letters अभी भी जो हैं बहुत ही संभाल के रखे गए हैं. अगर उन letters को आप पढ़ें या उस letters को देखें, तो उसमें जो लेटर वो लोग एक दूसरे को लिखा करते थे, उसमें वो लोग जो बड़े प्यार से जो है साइंस को भी इंक्लूड कर देते थे. ऐसे साइंटिफिक टर्म्स और ऐसे साइंटिफिक वर्ड्स को यूज़ करते थे लेटर्स में कि जो है बहुत ही एक अलग प्रकार का लेटर हो जाता था. और देखिए आइंस्टीन ने क्या लिखा उस लेटर में, उन लेटर में से एक लेटर में आइंस्टीन wrote, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion." सो उस समय आइंस्टीन और मिलेवा दोनों इस रिलेटिविटी पर काम कर रहे थे, ठीक है ना. और दोनों की ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और उस पर ये लोग रिसर्च कर रहे थे. तो और ये लोगों का ये मानना था कि अगर हम इस पर सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर हमें सफलता मिल जाती है, तो सच में कितनी बड़ी हमारी खुशी की बात होगी, हमारे लिए कितना गर्व की बात होगी. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. So at the age of 21, finally he completed his graduation, but he was unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. So finally what happened, after completing his graduation, he worked as a assistant teacher, he worked as a tutor. Okay, private lessons means giving coaching, giving tuitions, and finally in the year 1902 he secured a job as a technical expert in the patent office. Patent office means office that is recognized by the government. Okay, and that office was in Bern. Bern is the name of a city. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. So literally what was his work? His work was to assess the inventions of other people. His work was to look
his work was to to do the assessment of other people's invention, and he was doing that. But somewhere literally what was happening, he was literally developing his own ideas. ठीक है, आइंस्टीन को जो नई नौकरी लगी थी, उस नौकरी में आइंस्टीन को करना क्या था कि जो दूसरे लोग जो अलग अलग प्रकार के आविष्कार कर रहे हैं उसका अध्ययन करना, ठीक है। लेकिन आइंस्टीन यहाँ पर खुद अपने दिमाग में ही नए नए आइडियाज़ बना रहे थे, वो खुद अपने दिमाग में नए नए अध्ययन कर रहे थे वो, और उनका दिमाग जो है दूसरों के इन्वेंशंस का अध्ययन करने से ज़्यादा अपनी अध्ययन में वो लगे हुए थे, ठीक है। और एक दिन वो मजाक में क्या कहते हैं कि ही कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। डेस्क ड्रॉर मतलब क्या होता है, जहाँ पर बैठकर आप काम करते हो ना। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो रखा हुआ है टेबल और ये जो कुर्सी रखी हुई है, ये जो टेबल है इसको क्या बोला जाता है, डेस्क ड्रॉर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे बैठ के जो मैं कर रहा हूँ बेसिकली ये क्या है, थियोरेटिकल फिजिक्स है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन theoretical physics is of no use. According to him, practical physics is important. उनका कहना ये था कि फिजिक्स को समझना है तो प्रैक्टिकल तौर पर समझिए, थियोरेटिकल तौर पर समझेंगे आप तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, प्रैक्टिकल वे में जो है चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. So in the 1905, finally, one of his articles that was about this special theory of relativity, and according to that theory, time and distance are not perfect, they are not equal or they are not same. तो उन्होंने जो एक थ्योरी दी 1905 में, और वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, और उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि समय और दूरी ये जो है कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, ये चेंज होते रहते हैं। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. अब उन्होंने ये भी कहा कि अगर दो घड़ियों को एकदम एक्यूरेट एक ही समय पर रख कर अगर हम लोग अलग अलग दिशाओं में भेज देते हैं, ठीक है, और एक दूरी तय करने के लिए कहते हैं, और कुछ समय बाद जब वापस उन दोनों घड़ियों को अगर हम साथ में रखें तो दोनों का समय एक जैसा नहीं दिखाएगा, ठीक है। वो एक डिफरेंस की बात वो करते हैं। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. और वहाँ से ये जो वर्ल्ड फेमस फार्मूला है ये आ जाता है E equals to mc square, जहाँ पे E क्या है, E stands for energy, M for mass and C for speed, okay, और speed of the light in a vacuum 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये जो फार्मूला है E equals to mc square, ये वहीं से जो है शुरू हुआ। While Einstein was solving the most difficult problems in mathematics, his private life was unraveling. Now Einstein was busy, in his theory he was busy solving the most difficult problems in physics, और वो ऐसे समय पर उनकी जो प्राइवेट लाइफ है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ा रही थी। इस प्राइवेट लाइफ जो है वो अच्छी नहीं थी, पर्सनल लाइफ उनकी जो थी वो सही नहीं जा रही थी। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. So Albert, he wanted to marry Mileva, but after his studies, but mother was against this marriage. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. Now Mileva was 3 years older than Albert Einstein, and that was the reason mother was reluctant to accept her as daughter-in-law. She was also bothered by Mileva's intelligence, और मिलेवा एक काफ़ी बुद्धिमान महिला थी, और इसकी वजह से भी जो है आइंस्टीन की मदर नहीं चाहती थी कि ऐसी एक समझदार या बुद्धिमान महिला मेरे बेटे की पत्नी बने। She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. Or literally, Einstein's mother, she was looking for a woman, or she was looking for a girl who would be perfect for a housewife. She was not at all looking for a girl who is very intelligent or who is very brilliant in studies or somewhat like that. Einstein की मदर चाहती थी कि जो एल्बर्ट से शादी करे, जो बहू आए वो हाउस वाइफ की तरह हो, ना कि बहुत ही ब्रिलियंट हो, बुद्धिमान हो, पढ़ाई में ऐसे हो।
So she was against the marriage and finally what happened, Einstein put the wedding off. Einstein ने जो है शादी को जो है कैंसिल कर दिया गया, कुछ समय के लिए उसको उन्होंने उस विचार को जो है छोड़ दिया. The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. लेकिन in the year 1903 finally जो है दोनों ने आपस में शादी कर ली और उनके 2 बच्चे भी हुए, 2 लड़के. But a few years later the marriage faltered. ठीक है, बट कुछ ही सालों में क्या हुआ, शादी जो है वो धीरे धीरे टूटने लगी या रिश्ता जो है धीरे धीरे कमजोर होने लगा. Faltered means weak. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. Now, as we studied in the beginning itself, that Mileva was also very much interested, in physics, and she was also very much interested in this theory of relativity. But what happened after her marriage and after she gave birth to 2 sons, she became, a kind of housewife, and she was not having, much time for doing research or for going ahead with her ambition. And that was the reason what happened, she was mentally disturbed and she was not happy with her married life. तो मिलेवा तो चाहती थी कि वो भी एक बड़ी साइंटिस्ट बने, रिसर्च करे और इस रिलेटिविटी थ्योरी पर काम करे, लेकिन शादी के बाद 2 बच्चे होने के बाद वो एकदम से हाउसवाइफ सी बन गई और इतनी ज़्यादा बिजी हो गई अपने फैमिली लाइफ में कि उनके पास समय नहीं रहता था ये सब कुछ रिसर्च करने के लिए और बाकी चीज़ों को ध्यान देने के लिए, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी मेंटली क्या हो गई थी, डिस्टर्ब सी हो गई थी. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Now what happened? Now these 2 people started fighting. अब दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और धीरे धीरे finally what happened in the year 1919, the couple finally divorced और दोनों ने जो है तलाक ले लिया. But the same year, Einstein married his cousin Elsa the same year. और उसी साल आइंस्टीन ने दूसरी शादी की और वो कौन है, उनकी कज़न थी, एल्सा उनका नाम था. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to the world fame. अब जैसे उन्होंने दूसरी शादी के साथ ही साथ जो है उनका नाम पूरे वर्ल्ड में भी फेमस होना शुरू हो गया. In year 1915 he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity. और इन द ईयर 1915 है ना, 1915 में क्या हुआ, उन्होंने जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा और वो जब पब्लिश हुआ, ठीक है, उसमें उन्होंने ग्रेविटी के बारे में, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, इंटरप्रिटेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन, उसमें उन्होंने ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया था. और एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन द 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट. 1915 में इन्होंने ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात की थी और 1919 में क्या हुआ, एक सोलर इक्लिप्स जिसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण हुआ और सूर्य ग्रहण में ये बात कंफर्म हो गई कि जो कुछ आइंस्टीन ने 1915 के आर्टिकल में बात लिखी थी, कही थी, वो 100% सही था. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. तो उन्होंने जिस प्रकार से कैलकुलेशन करके उन्होंने इस बात का पता लगाया था कि जो लाइट है, जो स्टार्स से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो उसको लेकर उन्होंने जो कैलकुलेशन किया था वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट था. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. Now what happened in all the newspapers, everywhere, only Albert Einstein's, news was there. हर तरफ जो एल्बर्ट आइंस्टीन की खबरें थी. Even the newspapers proclaimed means declared कि ये एक प्रकार का क्या है, ये एक वैज्ञानिक और क्रांति है, ये ना साइंटिफिक रेवोल्यूशन है. ओके, सो एक ऐसे जो हर जगह जो है उनका नाम फेमस हो गया. आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921 एंड इन द ईयर 1921 ही वाज कन्फर्ड विद द नोबेल प्राइज फॉर physics. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. अब पूरी दुनिया भर से जो है उनको न्योता आने लगा, उनको सम्मान करने के लिए अलग अलग देशों से उनको बुलावा आने लगा और प्रेस में, न्यूज़पेपर्स में हर तरफ जो उनकी तारीफ होने लगी. He was appreciated. Lauded means he was praised, appreciated, ठीक है, by the press.
When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. अब जब 1933 में जब हिटलर जो है जर्मनी में जब अपना जो है सत्ता मजबूत कर रहा था, ऐसे समय पे आइंस्टीन जो है जर्मनी छोड़ के वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. और उसके 5 साल बाद क्या हुआ कि बर्लिन में बर्लिन क्या, दैट इज ऑल्सो अ प्लेस इन जर्मनी, जर्मनी में एक जगह है, और वहाँ पे जो है ये जो न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, उसके ऊपर जो एक डिस्कवरी की गई, ठीक है, कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब अगर ब्लास्ट किया जाता है तो कैसे वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, खतरनाक रूप साबित हो सकता है. तो इससे जो अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे वो काफ़ी अपसेट हो गए इस खबर को सुनने के बाद. मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड. और बहुत से, और नाजी और हिटलर जो था, हिटलर वॉज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, वो ही वॉज ए डिक्टेटर, वो एक तानाशाह था और वो प्रजातंत्र लोकतंत्र के खिलाफ था. तो ऐसे लोग जो हिटलर की जो विचारधारा से सहमत नहीं थे, वो सब जर्मनी छोड़ के भाग चुके थे और आइंस्टीन भी उनमें से एक था. और उनके अंदर ये भी एक डर था कि ये जो हिटलर है और ये जो नाजी है, नाजी कौन है, हिटलर की सेना को नाजी की सेना बोली जाती थी, कि भैया वो लोग क्या करेंगे, एक बम बना लेंगे, बॉम्ब, वो भी कौन सा बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं ये लोग, क्योंकि उनको वो फॉर्मूला मिल गया था न्यूक्लियर फिशन वाला. तो उनको डर था कि कहीं ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर पूरे वर्ल्ड को तबाह ना कर दे. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939. तो उन्होंने एक लेटर लिखा उनके साथी ने, ठीक है, उन्होंने आइंस्टीन के साथी ने आइंस्टीन से रिक्वेस्ट किया कि तुम अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखो. तो उन्होंने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, ठीक है, और उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा, इन विच ही वार्नड ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट माइट very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. और उन्होंने बताया कि ये जो एटॉमिक बॉम्ब अगर ये जर्मनी लोग बना लेते हैं तो वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है. तो उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार का बॉम्ब अगर किसी बंदरगाह, है ना, पोर्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बंदरगाह, अगर किसी प्रकार के बंदरगाह के पास अगर इस प्रकार का बॉम्ब गिराया जाए तो वो बंदरगाह तो तबाह होगा ही होगा, साथ में एक अच्छा खासा एरिया, टेरिटरी मतलब एक अच्छा खासा वाइड एरिया भी वो बर्बाद कर देगा. But what happened? His words did not fail to have an effect. But unfortunately, American president ने उनकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. लेकिन अमेरिका भी अपने जो है वो भी जो है सीक्रेटली उन्होंने क्या कि एक एटॉमिक बॉम्ब बना लिया और इन द ईयर 1945 वो जापान के 2 सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पर जाके उन्होंने ये एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया. आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. और आइंस्टीन को जब पता चला कि इस तरीके से जापान के 2 शहर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, लाखों की संख्या में लोग मर गए हैं, ही फेल्ट वेरी बैड, यू नो. This time he wrote a public missive to the United Nations. In it he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. So finally what happened? उन्होंने एक और लेटर लिखा है ना, public missive. Missive means what? Official letter, lengthy letter या official letter भी कह सकते हैं आप. उन्होंने एक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनना चाहिए. मतलब कहने का मतलब कोई भी देश अपने मनमानी तरीके से किसी देश से लड़ नहीं सकता, किसी देश पर बॉम्ब नहीं गिरा सकता. तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ के बारे में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ऐसा गवर्नमेंट होना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड, जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इनके लेटर पर ध्यान नहीं दिया, वैसे यूनाइटेड नेशन ने भी इनके लेटर पर ध्यान नहीं दिया. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics. लेकिन अगले 10 साल जो हैं वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए. Agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy.
और पूरी दुनिया में जाके ये लोगों से मिलते थे और एक कैंपेन उन्होंने शुरू किया, एक अभियान उन्होंने शुरू किया, जिसके चलते वो लोगों से कहते थे कि हथियारों ये जो वेपन्स हैं, ये जो हथियार हैं, ये बॉम्ब है, ये सारी चीज़ें हैं, इनसे हमें अपने आप को दूर रखना है। और वो जाकर लोगों के बीच में किसकी बात करते, वो पीस और डेमोक्रेसी की बात करते थे। वो लोगों के बीच में जाके यूज्ड टू टॉक अबाउट पीस एंड डेमोक्रेसी। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. So finally, in the year 1955, Einstein died at the age of 76. और जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद उनको क्या नाम दिया गया? He was celebrated as a visionary. Visionary means what? Visionary means a person who thinks about the future. जो भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हो, जो भविष्य की चिंता करे, ठीक है, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? विजनरी. एंड एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज वन ऑफ दैट, he always thought of a good world, a peaceful world. He always supported peace and democracy, ठीक है, और वो हमेशा चाहते थे कि दुनिया में अमन हो, शांति हो, देश आपस में ना लड़ें, एटॉमिक बॉम्ब का डेवलपमेंट, एटॉमिक बॉम्ब लोग डेवलप ना करें, ये सारी चीज़ें. सो दैट इज़ वाई ही वाज कॉल्ड एज ए विजनरी ऑल्सो, एंड अ पार्ट ऑफ दैट ए साइंटिफिक जीनियस ऑल्सो. और साथ ही साथ उन्हें एक साइंटिफिक जीनियस भी बोला जाता है. सो आई होप माई डियर चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल. Still, if you have any confusion, please feel free to ask questions in the comment section. Any particular word, if it is difficult for you to understand, or for a particular line you are unable to understand, please you can ask me in the comment section and I'll be helping you out. So that was all from this chapter, that was all from this video. So take care, thank you, and God bless you.